Hello everyone. Today we are going to start with question number 6 of worksheet 5.3 of arithmetic progression class 10. Now let us see what the question number 6 is. Question number 6 is the first term and the last term of an APR. दोनों terms दी हैं कौन कौन सी? First term and second last term. First term is 17, last term is 350 respectively, and if the common difference is 9, common difference is 9, D भी दिया है, then how many terms are there and what is their sum? First thing, see we are given A, D and last term. पहले तो हमसे पूछा है how many terms are there, कितनी terms हैं. Do you remember that method? टर्म्स निकालने के लिए वी अज्यूम द लास्ट टर्म एज द nth term. We will assume last term as nth term. Here I have written A, L and D. Last term is 350. Last term को क्या assume कर लेंगे? That is the nth term. यही मेथड होता है और वहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी. nth term A plus n minus 1 into D. That is 350. A 17 plus n minus 1 into D. 350, take 17 to the other side, 350 minus 17, so n minus 1 into D, 350 minus 17, 333. So from here n minus 1 into D की वैल्यू भी आप पुट कर दूँ मैं. What is D? 9. आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं. n minus 1 into D is 9, that is 333. ये D की वैल्यू आप जब यहाँ पे A की डाली थी वहाँ भी डाल सकते थे. ठीक है. टेक 9 टू द अदर साइड, 333 over 9. 9 3s are 27, 6 3, 9 7s are 63. So n minus 1 equals to 37. So n is equal to 37 plus 1. So what is n? 38. That means this AP contains how many terms? 38 terms. We got the first answer. ठीक है. सेकेंड आंसर पूछा and what is their sum. अब इनका सम निकालना है. अब सम का फॉर्मूला ध्यान रखना प्लीज. Here last term is given. तो लास्ट टर्म वाला सम का फॉर्मूला अप्लाई करें. n over 2 into a plus l. n अभी निकाला. How much? 38. So 38 over 2 into A 17 plus L, that is 350, right? और इसको ये कट गया 19, 17 plus 350 367. बस अब मुझे 367 को 19 से मल्टीप्लाई करना है and that is my answer. 9 7 63, 54 and 6 60, 27 and 6 33 and 3 6 7 3 7 9 6. So what is this? The sum is 6 9 7 3. So sum of how many terms? These are 38 terms. So 38 terms का sum आया 6973. Right? Now we'll take the next question. Question number 7. Question is find the sum of first 22 terms of an AP. First 22 terms का sum निकालना है. What is given? We are given the common difference D, that is 7, and the 22nd term, which is 149. So let's start the solution. Here D is 7 and the 22nd term A22 149. अच्छा जी, what is A22 22nd term of an AP? A plus 21D यही होती है. D की वैल्यू दी है, let's put it. 21 into D is 7. क्या मिलेगा यहाँ से? We'll get the value of A. Question is simple now. 7 2s are 14. 149. So A 149 minus 147. What is that equal to? 2. A and D both we have now. D तो दिया था, A हमने निकाल लिया. अब क्या पूछा है? Find the sum of first
22 टर्म्स, ठीक है। अब देखना फर्स्ट 22 टर्म्स, सम का फॉर्मूला रिमेंबर, आई विल यूज दिस a प्लस ए एन। आप फर्स्ट भी यूज कर लें तब भी चल पड़ेगा, बट 22 टर्म्स का सम निकालना है और 22nd टर्म ही दी है, तो एस एन एन ओवर 2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन कितनी टर्म्स? 22 टर्म्स, दैट इज 22 ओवर 2 इंटू ए प्लस ए 22, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स मुझे दी हैं, दिस इज 11, ए इज 2, 22nd टर्म 149, सिंपल। अगर आपने ये नहीं फॉर्मूला लगाना है तो जो फर्स्ट वाला है वो भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट में आता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा 11 इंटू 151, जस्ट मल्टीप्लाई, 11 1 11, 55, 56, 11 and 5, that is 16. So what is sum of first 22 terms of an AP? 1661. Now we'll take question number 8. Question number 8 है, it's a very simple question. क्या निकालने को बोला है? Find the sum of first 51 terms of an AP. First 51 terms का sum निकालना है. What is given? Second and third terms are given. अगर AP में हमें दो टर्म्स दी होती हैं, any two terms, from there we get the values of A and D, ठीक है। पहले वही निकाल लेते हैं। Here कौन सी टर्म्स दी है? सेकेंड टर्म A2, how much? 14। सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस D, that is 14, फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट कौन सा दिया है? अच्छा D तो वैसे भी आ जाएगा, देखो इसको इजी वे से करें, चलो इसको ऐसे रहने दें। नाउ थर्ड टर्म थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हैं, ठीक है। थर्ड टर्म कितनी दी है? दैट इज 18। नाउ डी तो डायरेक्टली आ जाएगा, देखो डी इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग द फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से करें, दिस इज द शॉर्टकट वे, ठीक है। 18 माइनस 14, व्हाट इज दैट? 4, डी आ गया। और ये डी की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं, मैं सेकेंड मैंने बनाई ही नहीं। So from 1 A plus D की वैल्यू 4, that is 14. So A 14 minus 4, so A is 10, ठीक है। A and D both are having, we are having now, what is asked? Sum of first 51 terms. पहले तो sum का फॉर्मूला लिख लें, the very first one, n over 2 into 2A plus n minus 1 into D, ठीक है। नाउ कितनी टर्म्स का सम? 51 टर्म्स का, मीन्स n इज 51 ओवर 2 इंटू 2A, A की वैल्यू 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू D's वैल्यू इज 4। बस अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, विल गेट आवर आंसर 20 प्लस 50 इंटू 4, so 51 over 2, 20 plus 200, so 51 over 2 into 220, cancel करो 110, so 51 into 11 करके देख लेना, 11 1 जा 11 and 11 5 जा 55, 56, ठीक है। It is 5 6 1 and 0 is also there, so this is the sum of first 51 terms of an AP. Now we'll take the 9th question, and this is very important question from examination point of view. So इस question को ज़रा बहुत ही ध्यान से देखना है। Given क्या है? Given है if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. पहले given क्या है? sum of first 7 terms, that is S7, कितना? 49। और दूसरा S17, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289। देखो जैसे एक टर्म से, AP की एक टर्म से हमें A एंड D में एक इक्वेशन मिलती है,
वैसे ही सम भी हमें एक इक्वेशन देगा। सम का फॉर्मूला लगाना मैंने यहाँ सबसे पहले तो एस एन, तो वेरी फर्स्ट एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम कितना है ये फर्स्ट केस में 49, एन कितना है 7, बस एन को 7 डालना, ए एंड डी तो वैसा ही रहेगा 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 40, ये 7/2 को सीधा उधर ले जाओ, 2a प्लस 6d 49 इंटू 2/7, 2a प्लस 6d 14, सो 2 इज कॉमन थ्रू आउट, डिवाइड करें जरा 2 से, a प्लस 3d इक्वल टू 7, वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा सेकेंड इससे निकाल लेते हैं, S17 फिर से सम का फॉर्मूला लिखना है Sn का, ठीक है, Sn सम S17 Sn का फॉर्मूला n/2, पहले n/2 ही लिखना उसको, बाद में n की वैल्यू यहाँ 17 डाल देना, डायरेक्ट मत करना है इसको, पहले फॉर्मूला लिख के वैल्यूज़ डालना। n 17 है, बस n को 17 लिखना, और a एंड d तो ऐसा सच रहेंगे। ऐसे ही हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी a एंड d में, और उसको फिर बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ये 17/2 को उधर ले गए, 289 इंटू 2/17, 17 ज़ा 289 होते हैं, 2a प्लस 16d 34, अगेन वी कैन फाइंड 2 कॉमन, ठीक है, 2 से डिवाइड किया थ्रू आउट दैट इज 17, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट लेट्स डू जस्ट 1 माइनस 2, क्योंकि ए के कोफिशिएंट्स इक्वल है तो इट वुड बी बेटर कि आप डायरेक्ट 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1, वो आपकी मर्ज़ी है, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसका, ये चीज़ ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू चेंज साइंस, 3d माइनस 8d दैट इज माइनस 5d minus 10, d 10/5, what is d equals to? d equals to 2. If d2, let's put this value of d in any one of the two equations. 1 में डाल लेता हूँ, from 1 1 is a plus 3d equal to 7, ठीक है, d की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल देनी, 3 into d is 2 that is 7, a plus 6 equals to 7, 7 minus 6, what is that? 1. So दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास a and d both, ठीक। अब क्या पूछा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, now it's very simple, Sn का फॉर्मूला द वेरी फर्स्ट वन, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब n तो n ही रहेगा, a एंड d की वैल्यूज मैंने डाल देनी यहाँ से, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 माइनस 2 कैंसल्स, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 cancels, n into n square. So what is sum of first n terms here? n square. So with this solution is complete. और एक चीज़ और प्लीज़ ध्यान रखना आपने, जब आप वीडियो देखते हैं, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक काम ज़रूर करना है आपने, मुझे बूस्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सारे वीडियोस चैप्टर वाइज इसी चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब कोई वीडियो देखना हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, सो विज़िट करें मेरे चैनल पे, और उसमें सारे चैप्टर वाइज ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, यू कैन चेक दैट। थैंक यू।